వెల్కమ్ టు మై ప్రోగ్రామ్ నిజం విత్ నిజాం. ప్రస్తుతం మనతో జైల్స్ డీజీపీ మొహమ్మద్ ఎహసాన్ రిజా గారు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాము. సార్ అస్సలం అయికం సార్. వాలేకుమ్ అస్సలాం. సార్ ముందుగా చాలా సంతోషం సార్ మిమ్మల్ని చూడడం, ఇంటర్వ్యూ చేయడం. థ్యాంక్ యూ. సార్ చెప్పండి సార్, మీకు అసలు ఫస్ట్ ఈ విద్యాభ్యాసం మొదలు ఈ ఐపీఎస్ అవ్వాలని చెప్పి ఆశ ఎందుకు కలిగింది సార్? I am from Bihar. And my batch is 91. Sir. I have put in 32 years of service and about to retire in next 4 or 5 months. In this department I am working since 6th December 2019. So it's around 3 years plus. సార్ సార్ యాక్చువల్లీ మీకు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా సార్. జనరల్గా ఒక ఎవరికైనా సరే చిన్ననాటి స్నేహితులు అందరికీ ఉంటారు. అయితే మీకు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు వాళ్ళతో నార్మల్గా ఫ్రీగానే ఉంటారా సార్, లేదా నేను ఒక ఆఫీసర్ని అని చెప్పి ఫ్రీగా ఉంటారు అందరు ఫ్రెండ్స్ సార్? అంటే వాళ్ళు ఏమన్నా మనల్ని మన హెల్ప్ అడుగుతారు అని ఏమన్నా కొంతమంది చాలా వరకు ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైనా సరే చిన్ననాటి ఫ్రెండ్స్ని కొంచెం దూరం పెడుతూ ఉంటారు. అలా సార్ యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ I used to feel this, if I share my knowledge with someone, it will help me. If you are selfish, then you can't gain any knowledge. So as a friend or anybody, not only friend, anybody if they seek help, if I can do, I do it without thinking twice. I help people if somebody comes to me. సార్ సార్ ఈ ఉద్యోగం మీకు ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిందా సార్ మీ జీవితంలో? Yeah. ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్. Full satisfaction. ఇంకా ఏదన్నా సాధించాలి అన్న ఆశ ఉందా సార్ మీకు? ఫైనల్గా నేను ఇది అచీవ్ చేయాలి అని. Normally I feel we could have done much more to the society. We in the department sometimes we have not been able to achieve what we could have achieved if there would have been some opportunity. We have, that way are not that much happy. Sir, did you feel any regret in any case? I might have done like this. నేను ఇంకా ఇది బాగా చేయగలను అని ఎప్పుడైనా? There is a chance for improvement in every walk of life. I tried to do better. I would have lagged somewhere, I don't know, but there is a chance for improvement. సార్ నేను ఒక విషయం ఖచ్చితంగా చెప్పగలను సార్. జనరల్గా ఏ కంపెనీలో అయినా సరే సార్, మనకు ఒక 5 lakhs ఇచ్చే ఒక CEO అయినా సరే సార్, లేదా ఒక 1 lakh ఇచ్చే ఎంప్లాయీ అయినా సరే, తన పై ఎవరైతే ఓనర్ ఉంటారో లేదా సమ్ MD ఉంటారో వాళ్లకు అంత విధేయతగా ఉండరు సార్. కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో మాత్రం సబార్డినేట్స్ ఇంత అటెన్షన్లో ఉంటారు సార్. ఒకరికి ఒకరు చాలా అటెన్షన్లో ఉంటారు. ఓన్లీ వై ఇన్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ సార్, ఓన్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సబార్డినేట్స్ ఆర్ వెరీ how they are very disciplined and they don't have any choice. Dedicated. Is there any training about this, sir? There is a training and there is no choice also, because we are working in a department where command and control is must. Suppose there is a fighting going on and if I ask my people for lathi charge and that fellow says, sir, why should we do it? They are our people. Then there will not be any law and order maintenance. We have to maintain discipline in the department. Otherwise, we will not be able to perform our duties. It's a must. Must and should. It is a training, sir, before. Yeah, it's a requirement. Requirement. It's a requirement. सर मुझे बताओ, आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिया सो केस कुछ तो भी है सर? आपको अच्छा ये केस मुझे सेटिस्फैक्शन लगा, इसमें मैं इंसाफ अच्छा कर सकता? एक पुलिस ऑफिसर के लाइफ में सर बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है सर. अब उसको गिनना अब याद कराना ठीक नहीं है, लेकिन मैं
एक बंदोबस्त में था और मैं एक वीआईपी के बंदोबस्त में था। मेरे पास एक जवान आया और उसने हमसे कहा कि साहब आप पहले आईटीबीपी में काम किए हैं। हमने कहा हाँ काम किया हूँ। जी बोला मैं भी आईटीबीपी का जवान हूँ। तो हमने उससे पूछा कि तुम कैसे जानते हो मुझे, क्योंकि मैं आईटीबीपी में काम किया हूँ। तो मैं समझा कि शायद मेरे बटालियन में कभी रहा होगा। तो उसने कहा कि नहीं मैं आपके बटालियन में नहीं था। देन आई वॉज ऑल्सो इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आई थॉट परहैप्स ही वुड हैव कम फॉर ट्रेनिंग। जी He said no, he never came to for training during my period. Then I asked, how did you know? He told me that he has heard about me. We used to do a lot of welfare activity because the Jawans are always in stress. Because of the nature of their duty, they will be in stress always. So if we used to do some little effort towards their welfare activity, like taking care of their family matters at home, or looking after their accommodation, food, leave, pay, TA in time, so they used to feel very happy. So that person had known me because he heard about me that I am so and so and working at so and so place. So that gave me a lot of satisfaction. At least it's a third person's ACR. It was not given by my superior officer. It was given by my subordinate officer. yes sir. So I felt very happy. Yes, sir. Sir, generally, if two people comes to you for justice, the police can do only one Yeah. justice to one only. Sir, It can be both also sometimes sometimes, because there is a confusion, there is a doubt. sir. Both of them feel that they are right. Uh, People come to police only by seeing their uniform that this fellow will help us. Same. Others, suppose you are there standing, they may not come to you because they know that you are not a policeman. But if there is a policeman standing nearby, they will recognize that he is a policeman. So, policeman comes to help. in this justice, I'm asking again, sir. Did you feel any regret about this, sir? Never. No, never. Never. It gave me a lot of satisfaction. Satisfaction. I feel if I have to, if God grants me Jannah, it will be because working in this department only may be the reason of giving me heaven. Alhamdulillah. Sir, can you explain some types of prisons, sir? Can you please? We have 81 prisons in our state. 5 of them are central prisons. 8 district jails. Sir. 11 special jails. Sir. 2 jails for women, and rest are sub jails. एक कैदी को कोर्ट ने रिमांड बता दिया तो वो कैदी अंदर चले गया जेल में, तो उसका एडवोकेट अगर कोई भी नहीं रहता तो उसकी हाल क्या सर? वो अंदर ऐसा ही रहना पड़ता क्या? We provide them legal aid. There is a district legal aid society which gives them aid, सर free legal aid. सर तो उसके जरिए से उन बाहर आ सकता क्या आ सर? सकता. हाँ बाहर आ सकता तो नॉर्मल. अभी तो आज भी था वेबिनार था उसका. सर कहीं पर बेल होता है, बेल बॉन्ड में कुछ अमाउंट होता है, अगर वो पे नहीं कर सकता है या कोई आदमी कन्विक्टेड होता है, उसको टेन्योर पूरा होता है, पैसा पे नहीं किया तो हम पैसा पे करते हैं उसको. अच्छा हमारे पास फंड है उसका. अच्छा separate एनीबडी कैन कंट्रीब्यूट टू दैट फंड. अच्छा नॉर्मल पीपल भी वो फंड Can कंट्रीब्यूट contribute. कर सकते हैं. हाँ सर क्रिमिनल्स को कैसा आप कौन से बेसिस पर लेते सर? अब समझो साइकोपैथिक ऐसा सबका अलग अलग अलग-अलग अलग अलग होता है. एक जगह मिक्स नहीं करते हैं उसको. हाँ सर मैंने सुना कि लेजिस्लेटिव रहता, थोड़े हैबिचुअल क्रिमिनल्स रहते हैं. अब जैसा मैं पहले बताया ना सर. रिपीटर्स. हाँ रिपीटर्स, हैबिचुअल्स, साइकोपैथिक, इमोशनल, मोरलिस्टिक, उसमें भी तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स आते हैं ना सर. उसमें बेसिकली जो एज ग्रुप देखते हैं हम, बड़े छोटे को नहीं रखते थे, एक एज ग्रुप को एक साथ रखते हैं. साइकोपैथ को अकेले इसमें रखते हैं और रिपीटर को और लोगों से मिक्स नहीं करते हैं. जी सबका अलग अलग ये है इंतज़ाम है उसका. सर एक हायर अथॉरिटी होने के बाद आप
सर कभी तो भी आप सडन विजिट्स करते रहते हैं हमेशा करता सरप्राइज हूँ, ऑलवेज सरप्राइज विजिट। करते रहते। तो सर हम बहुत सुनते रहते जेल में जाकर बाहर आने के रिमांड कैदी जो भी है उन्होंने बताते रहते कि अंदर वैसा होता ऐसा होता ऐसे होते। क्या होता है? सर रिसेंटली एक इशू चित्तूर में हुआ सर, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट जेल में हुआ। पहले तो हम एक मेरा डायरेक्ट बोलता हूँ सर, मैं अंदर गया सर, मैं और मेरे साथ एक गए थे, एक आदमी रिमांड एक पर्सन था, उससे मिलने के लिए गए सर। गए तो उन्होंने वहाँ पे आप क्या करते बोल के पूछे सर हमको। हम ना इंटरव्यू होना मिलने के लिए उनसे बोले क्या करते बोले तो हम बिजनेस बोले तो ठीक है कुछ तो देखो जाओ बोले देखो जाओ। इमीडिएटली हम बोले हम जर्नलिस्ट है तो पहले बोलना था ना आप बोले ठीक है। हम जाके वो रिमांड में जो पर्सन है उससे मिल लिए सर। मिल के हम बाहर आने के वक्त में फिर उसके मिसेस जाके मिली, उसकी जो बीवी रहती उन मिली तो उसके हाथ वो जो अंदर रिमांड में कैदी है ना सर उसके जरिया बोलने कराया कि पैसे देने को बोलो उन लोगों को। ठीक है आया उन्होंने ना इनकम कब की बात है ये? रिसेंटली सर 25 डेज में हुआ, 25 डेज। उस महिला को कहिए रिपोर्ट करेगी। हाँ सर तो उन्होंने बताया सर ये आप थोड़ा अच्छे बोले तो कैसा रहता का तो देखो नहीं सर। तो बहुत इट्स वेरी सीरियस मैटर। तो उन्होंने क्या बोले सर, तो वो लेडी जो उनकी वाइफ है ना उन्होंने बाहर आके हमको बोले सर आप 1000 रुपीज़ पूछते हैं उन्होंने, अगर आप नहीं दिए तो उसे अंदर गाली देते कहते वो रिमांड पर्सन जो है उसको। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। हाँ मैंने जो देखा, मैं तो सरप्राइज विजिट में हमेशा जाता हूँ, सारे कैदियों से बात करता हूँ, रिमांड में तो सबसे बात करता हूँ, किस केस में आए, कब आए, क्यों किए, वो अच्छा लगता है यहाँ कि नहीं साहब अच्छा नहीं लगता, क्यों किए, गलती हो गई। गलती मैं सबसे बात करता हूँ, एक एक करके सबसे बात करता हूँ। तो इसमें ट्विस्ट सर, तो इमीडिएटली मेरे साथ और एक पर्सन रहता उन्होंने गए सर मैं ऐसा मीडिया बोले नहीं पूजा के लिए पूछ रहा हूँ मैं पैसे। अच्छा क्या पूजा कैसा पूजा नहीं पूजा कौन है आपके ऑफिसर कौन है, सीआई अंदर बैठ को थे सर। सीआई जेलर होगा। हाँ जेलर अंदर 3 स्टार कैडर वाले अंदर बैठ को थे। जेलर सार को पूजा के लिए 1000 रुपीज़ चाहिए बोल के तो उन्होंने घट बोले सर जो नहीं हम ऐसा बोलने के बाद ऐसा 2 बातें हुई तो बाहर निकल के आ गए। आने के बाद सर बाहर जो बोर्ड था सर क्या बोल के अगर कोई आपको ऐसा पैसे पूछे या नहीं कोई आप कंप्लेंट करना चाहे तो DIG साहब का नंबर दिए और एक कुछ साहब जेलर साहब को किसका की नंबर दिए सर। तो इमीडिएटली इन्होंने उस नंबर पे लगाए तो फ़ोन नहीं सर स्विच ऑफ। गलत नंबर दिया हुआ था क्या उसमें? मैं इसीलिए आपको डाउट पूछना चाहा कि जो वो फ्लेक्स बना के वो जेलर या नहीं कोई वो लगाने कराए पुराना नंबर तो नहीं था वो। हाँ लगाने कराए तो ऐसा कुछ होता बोल के डर के उन्होंने गलत नंबर कुछ दे के रहते। नहीं ऐसा गलत नंबर तो दे नहीं सकता है वो सर। ये हो सकता है कि पुराने टाइम का वो ऑफिसर रहा होगा, वो फ्लेक्सी बदला नहीं उसने। जी सर। क्या क्या नंबर है बताइए सर 9494 9494 633 633 638 सर। कड़पा रेंज के DIG साहब तो मोबाइल अच्छा ये वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं सर। ये आजकल राजमंड्री में है सर तो नंबर तो रहता ना सर, नहीं रहता क्या? स्विच ऑफ। ये वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है। ये आ गया है राजमंड्री आ गया है। जी जी राजमंड्री DIG का नंबर इसके पास है। जी सर। तो उस वक्त में वैसा बहुत अफसोस हुआ सर, इतना वसूल एक बार कोशिश की वो भी नहीं मिला। मेरा नंबर भी होगा उसमें? नहीं सर, अगर आपका रहता तो हम इमीडिएटली करते थे। नहीं तो उसमें तो DIG बोल के था, DIG बोल के था सर। हाँ कौन सी जेल में गए थे? चित्तूर जेल सर, सेंट्रल जेल चित्तूर में। सेंट्रल नहीं डिस्ट्रिक्ट जेल है। हाँ वो सर चित्तूर डिस्ट्रिक्ट जेल सही है। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट जेल में उतना हुआ अफसोस हुआ, ठीक है बोल के। वो नंबर उसका स्विच ऑफ है। हाँ सर। अच्छा को बुलाना जरा कैम क्लर्क को। कब की बात है? 20 डेज 25 डेज डेट एग्जैक्ट टेल मी। व्हाट वाज हिज नेम? अच्छा आपको मालूम हो जाएगा, जेलर का नाम मालूम हो जाएगा। चित्तूर जेलर उसको बोलो कल आएगा वो इकड़ा। फरवरी 3 तारीख को हुआ सर। ठीक।
मॉर्निंग 10:30 के वक्त में गए थे तो कल आएगा वो। वैसे रवि किरण का नंबर इस स्विच ऑफ। सर नॉर्मल सब्जेक्ट में अब सर अंदर कैदियों को आप जो प्रोवाइड करते हैं ना वर्क करने के लिए सर, जिनको भी हर जगह नहीं होता है ये, थोड़े जगह होता है थोड़ी जगह होता है। तो लाइफ पड़े सो लाइफ लाइफ वो सेंट्रल जेल में रहता है। सेंट्रल जेल में रहता है क्या? तो सर सेंट्रल जेल आपके अंडर नहीं आते क्या सर? मेरे अंडर अंडर आते ना सर, स्टेट में जो भी एक सेंट्रल जेल रहता आते, तो उन लोगों को वर्क जो प्रोवाइड करते ना सर, वो वर्क करने के बाद उन लोगों को वो जो भी उनका पैसा जमा होता वो उनके फैमिलीज को नहीं भेजते सर? नहीं भेजते। भेजते क्या सर? वही भेजता है, हाँ वही। हम नहीं भेजते, वही भेजता है। सबका अकाउंट वहाँ खुला रहता है, जी सर। वेज सबको मिलता है। जी सर। कुछ को गवर्नमेंट वेज देती है, जी सर। कुछ काम के लिए, जैसे सफाई का काम है, खाना पकाने का काम है, जी सर। हेयर कटिंग का काम है, वो सब काम के लिए गवर्नमेंट पे करती है सर। बाकी जैसे वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है सर, कुछ बनाने का काम है, उसमें पे करती है। हमारा एक फंड है, उससे हम पे करते हैं। उससे जो पैसा आता है उसी से उसको हम पे करते हैं। उसमें से कुछ पैसा तो वो खर्च करता है, अराउंड 25% और सो अगर वो चाहे कैंटीन वगैरह में इधर उधर में खर्च करता है, बाकी पैसा उसके घर को जाता है। सर आप इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना सर। पेशेंट्स जो भी अंदर जाते ना सर रिमाइंड के कैदी से, उनको पहले 3 दिन तो उपमा पुलिहोरा और एक अच्छे 3 डेज जो 3 आइटम्स देते बेहतर देते सर। रिमाइनिंग जो 4 डेज में जो सुबह नाश्ता में ब्रेकफास्ट जो देते ना सर, आज तक कौन सा भी अंदर जाके बाहर आए सो कैदी बताना सबको है कि वो क्या है, वो चीज़ क्या है बोल के उन्होंने इतना भी ब्रेकफास्ट में जो उनको खाए थे ना सर, उन्होंने ऐसा बोले कि हमें इमोशनल में गलती करके अंदर चले गए, लेकिन अंदर इतना हम ना खाने को बराबर नहीं। ऐसा भी देखो, ऐसा जेल में सर नॉर्मली खाना सर घर जैसा तो नहीं नहीं मिलेगा, मिलता। सही ठीक है, है। सही है सर। लेकिन फिर भी जो खाना हम देते हैं उसको हाइजीनिक फूड देते हैं सर और खाने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है सर। पहले से। मैं तो जेल करीब 30 बरस से जा रहा हूँ, जब भी जहाँ भी नौकरी करता हूँ जेल विजिट ज़रूर करता हूँ सर। और खाने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, रिहाइश में इम्प्रूवमेंट है, गंदगी नहीं रहती है और फ्लाई मॉस्किटो कम होता है, मतलब नहीं के बराबर है सर। और लेकिन अब घर जैसा माहौल अगर उसको मिलेगा तो फिर जेल सब और जाके अंदर इसमें बैठते हैं। फर्क नहीं रहेगा। सर मैं ये भी आपके नोटिस को लाना चाहता हूँ सर, अंदर पैकेज के बराबर जो भी कैदी रहते सर, उनको पैकेज के बराबर डिवाइड करते हैं सर। क्या पैकेज? बोले तो अगर आप 50,000 रुपये अंदर दे दिए तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट सर। आप यकीन नहीं करते सर, इवन फोन इज अलाउड इनसाइड द जेल सर। ये कंप्लेन है लेकिन सर हमारे नोटिस में तो नहीं आया है। ये जितने भी बाहर से आए थे ना सर, अंदर जाके आए थे ना, उन्होंने इतना बोल रहे कि सर पैकेजेस के बराबर अंदर सब ट्रीटमेंट चल रहा, तो अंदर है ना सर। नहीं देखो, ऐसा है कि हमारे पास जो है रिमांड का आप तो प्रोवाइड नहीं करते। ऐसा है कि हमारे पास जो रिमांड का प्रिजनर होता है वो कन्विक्ट से अलग होता है, दोनों का अलग अलग वो है। रिमांड का प्रिजनर जो होता है वो रिमांड वाला होम में रहता है, वहाँ एक 4-5 या जितने भी जो भी सेंट्रल जेल है तो ज़्यादा होगा, तो वो एक ही कमरे में रहते हैं, बैरक में रहते हैं। बैरक होता है वो, उसमें बैरक में अलग से फैसिलिटी नहीं। बैरक में जैसे मान लिया ये एक बैरक है जी, इसी तरह से 10 बैरक है, हाँ सर। तो 10 बैरक में कोई स्पेशल, चूँकि मैं तो जब भी गया हूँ सरप्राइज भी गया हूँ, मैं इतने देर में कोई हटा नहीं सकता है बेड को कि उसको पता चला कि गद्दा दे दिया और बेड ला के दे दिया। हाँ, कुछ लोग हॉस्पिटल में रहते हैं जो दे आर पेशेंट्स, वो ट्रीटमेंट में रहते हैं, वो हॉस्पिटल में रहता है। सर हमको इतना खुशी होता है कि आप जैसे ईमानदार ऑफिसर्स इतने बड़े पोजीशन में हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो भी अब मैं बोला ना सर आपको, थोड़े थोड़े ये होंगे ना, चेक करने इसे आपके नोटिस पे लाने से हमारा इंटेंशन एक ही सर, आपके नोटिस पे लाने से बिल्कुल थोड़ा कोशिश किया जाएगा कि वो भी नहीं रहे। और एक बात, पेरोल पे थोड़े बाहर को आते ना सर, पेरोल पे जो भी आने वाले हैं तो उनके लिए क्या होते सर, कंडीशंस क्या होते सर पेरोल पे? 1 महीने के लिए जाता है वो,
गवर्नमेंट भेजती है उसको, हमारे हाथ में नहीं है वो, गवर्नमेंट सैंक्शन करती है पेरोल 1 महीने के लिए, बाद में थोड़ा एक्सटेंड भी होता है 15 दिन, उसके बाद वो अपना फैमिली मैटर्स को देख करके चला आता है फिर आते सर उस वक्त में अगर वो फरारी होगा तो सर उसे शिक्षा डबल हो जाए शायद। मैं उसको फिर माफ़ी नहीं मिलती उसको। अभी नहीं माफी में सर ये पेट्रोल बंक्स जो ये करते इनाग्रेट करते हैं ना सर, आप भी एक इनाग्रेट करते हैं, पेट्रोल बंक्स का कॉन्सेप्ट क्या है सर बोले तो? मैं बेसिकली क्या है कि जो हमारे कैदी लोग होते हैं उसके लिए कुछ न कुछ रोजगार मुहैया करना होता है, वो एक हुनर है। पेट्रोल पंप चलाना हर कोई नहीं चला सकता है उसको, तो वो ट्रेनिंग उसको देते हैं, उसको वेज देते हैं, उसका डेली का वेज उसको मिलता है, और उससे जो प्रॉफिट आता है वो हमारे पास एक एपी प्रेजेंट डेवलपमेंट बोर्ड फंड है एक हमारे पास, वो फंड में जमा हो, उससे बहुत सारे काम होते हैं। सर बोले तो अब जो भी वहाँ एम्प्लॉयज रहते सर, समझो कोई भी काम करते तो उन्होंने शिक्षा पूरे हो सो खरीदिया मैं पूरे हुए को भी मिलती है नौकरी, नौकरी मिलती, और जो लोग शिक्षण में हैं उसको भी नौकरी मिलती है। इंडिया में सबसे भयंकर जेल कौन सा है सर? हमारे जेल तो अच्छे हैं, मुझे नहीं पता है कौन भयंकर जेल है, मुझे पता नहीं है। हमारे जेल अच्छे हैं, नहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, जहाँ चूँकि हमारा एक सदर्न स्टेट्स का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कॉमन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वेल्लोर में, हम लोग पाँचों मिलकर चलाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो हमारे जेल्स तो अच्छे हैं। अब कौन भयंकर है ख़राब है मुझे आइडिया नहीं है उसका। सर मेरा बोलना ऐसा है कि अब समझो सर एक कैदी बहुत जो भी माफ़ी नहीं सो कैदी रहता, जो माफ़ नहीं कर सकते उसे, तो बोलते हैं अंडमान जो है तिहाड़ जेल बहुत भयंकर रहता बोलते हैं। बहुत अच्छा जेल है तिहाड़ जेल, ये सब अच्छे बोले तो इसमें वहाँ जो अंडमान तो अंग्रेज़ों के वक्त में लोग भेजा आता था जी, अब नहीं भेजते हैं अब नहीं। अंडमान में। सर तो तिहाड़ जेल तो भयंकर के नाम से कौन सा बोले तो ट्रीट थोड़ा कठिन से ट्रीट करना नहीं, ऐसा कुछ देखो ऐसा है कि जेल का कंसेप्ट जो है वो सुधार गृह का है। अब देखो करेक्शन वहाँ पर एक वर्ड है उसमें, कस्टडी, केयर एंड करेक्शन। तो जो जवान आता है, जो कैदी हमारे पास आता है आइदर एज ए कॉन्विक्ट और एज ए रिमांड प्रिजनर, हमारा काम उसका सेफ कस्टडी है सर। उसके हेल्थ का ख्याल रखते हैं हम, उसके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उनके रहने का ख्याल रखते हैं, उनके नहाने का ख्याल रखते हैं, उनके हेयर कटिंग और शेविंग का ख्याल रखते हैं। जो शायद घर में न कर सके वो उतनी फैसिलिटी उसको हम देते हैं सर। उसको हम शैम्पू देते हैं, उसको हम साबुन देते हैं, टूथपेस्ट देते हैं। सर उतना उसको घर में नहीं होगा, लेकिन कैद होता है, आज़ादी नहीं होती, वो जहाँ चाहे जा नहीं सकता है। अब अभी सरकार ने, जगन रेड्डी साहब ने जो है अभी एक नया स्कीम इन लोगों के लिए दिया है, आरोग्यश्री का जी। अब ये जो कैदी हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज कर सकते हैं और सरकार पूरा खर्च बेयर करेगी। वो कैदी जहाँ का भी हो, देश का हो, विदेश का हो, एपी का हो, एपी से बाहर का हो, अगर वो कैदी यहाँ पर है तो उसका इलाज मुफ्त करेगी एपी सरकार, एपी गवर्नमेंट। सर वाइट कॉलर क्रिमिनल्स को कैसा ट्रीट करते सर जेल में? तो वैसे ही होता है जिस तरह से और लोग, यहाँ तो कोई एक बी सी कैटेगरी का नहीं है, भी नहीं। तो सिर्फ खाने के लिए अगर वो अपना खाना अलग, अगर पेशेंट है तो कोर्ट से परमिशन लेके आता है, कोर्ट प्रोवाइड कोर्ट परमिशन देता है तो वो अपना खाना अलग बना सकता है। सर खाना वहीं से मिलेगा जहाँ पे बनता, जहाँ से सब जेल से ही सप्लाई होगा उसको राशन आइटम, वो अपना बना के खा सकता है अगर उसको कोर्ट से परमिशन मिलेगा। सर अगर वीआईपी है तो भी उसको फूड बाहर से अलाउड नहीं सर? नहीं, अंदर का जो भी फूड है वही फूड। सर अगर कोई पढ़ना चाहे अंदर, पढ़ने के लिए याद है अब तक कितने बच्चे प्रेजेंट? बहुत लोग पढ़े हैं यहाँ से, एमए पास किए, पीएचडी किए हैं हमारे यहाँ जेल में रह करके, सर अभी भी पढ़ते हैं। सर पीएचडी पूरा करके उन्होंने बाहर आके अगर उनको नौकरी मिलती है तो। रिसेंट से कुछ है क्या सर ऐसा? नहीं, असल बेसिकली कैदियों को नॉर्मली नौकरी में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन इंसान बहुत अच्छा बनता है वो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलती कर लिया लाइफ में सर, और गलती हो गई तो अब उसको तो चांस मिलना चाहिए, जीने का एक मौका मिलना चाहिए। सोसाइटी से तो यही अपील हम लोग करते हैं कि भाई अगर कोई आदमी अगर अच्छा बनना चाहता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। सर मुझे ये बताओ, आपके लाइफ में सबसे
बोले तो कॉम्प्लिकेटेड केस क्या आप चैलेंजिंग से लेकर फेस करें सर, बोले तो जेल में? सक्सेस, हाँ नहीं सर, आपके पूरे नॉर्मली क्या होता है आपके एज ए पुलिस ऑफिसर जो है, सर जब कभी आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सर या फार्मर प्रोटेस्ट को सर या कुछ इशू पर जो जनरल लोग चले आते हैं, उस वक्त थोड़ी परेशानी होती है। और मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस ऑफिसर ज़रा भी सिंसियर है तो उसको रोक देता है। वो कोई भी इंसिडेंट अगर हो गया, वो आधे घंटे में पौन घंटे में अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फेलियर है उस पुलिस ऑफिसर का जिसने उसको कंट्रोल नहीं किया। अदरवाइज तो कोई भी ऐसा मौका नहीं है जहाँ पुलिस वाले अगर ठीक से काम करें तो। मुझे ये बताओ, इस अब आप समझो सर, जेल्स के आप हेड हैं, तो ऐसा आपको पॉलिटिकल से भी कुछ प्रेशर्स रहते क्या नहीं सर? होता। नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। कौन से भी जेलर्स को रहो, जेलर से लेकर ये कैडर तक भी नहीं होते। नहीं, ऐसा यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ पर जो प्रेशर करेगा, जो हम कोई इन्वेस्टिगेशन तो करते नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ अपकीप है, लोगों को रखना है, रखते हैं उसको। सर ओपन जेल्स का कॉन्सेप्ट क्या है सर? ओपन जेल का कंसेप्ट ये है कि जो लोग जेल के अंदर रहकर सुधार शो करते हैं अपने आप में, उनको हम बाहर जाने और बाहर में काम करने का मौका देते हैं। तो उसमें बहुत लोग तो हमारे जेल के अंदर जो खेती बाड़ी है या वो हॉर्टिकल्चर है उसको देखता है। नॉर्मली हॉर्टिकल्चर या डेयरी या कुछ उस तरह की एक्टिविटी में वो लोग रहते हैं, और उन लोगों को हम लोग जो है बाहर जाने का मौका देते हैं। उसको रहने का भी बाहर ही ये है, भागते नहीं हैं वो सर। वैसे लोगों को चांस है कि अगर वो ठीक ठाक रहें तो रेमिशन उनको मिलता है आसानी से। आपका अमूल्य समय हमारे लिए देने के लिए बहुत धन्यवाद सर। థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది ఇవాల్టి ప్రోగ్రామ్. మరో ప్రోగ్రామ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.